سے راتوں کو روشن کریں گے، جو سال کے 365 دن میں 360 دن روزہ رکھیں گے، جو پوری رات 40 سال تک جاگ کر عشاء کی وضو سے فجر پڑھیں گے۔ ان لوگوں کی مثال تم نے کیوں نہیں دی؟ خون ریزی ہوگی، انسان کی فطرت میں لڑائی ہے، انسان کی فطرت میں جھگڑا ہے، انسان کی فطرت میں خصومت ہے، انسان کی فطرت میں انمیٹی ہے، انسان کی فطرت میں جیلسی ہے، انسان کی فطرت میں وینیٹی ہے، انسان کی فطرت میں پرائیڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ لوگ جھگڑیں گے ضرور مگر حق ہمیشہ غالب رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ ان جھگڑوں کے بیچ میں شریف ہمیشہ غالب رہیں گے، متقی ہمیشہ غالب رہیں گے، پرہیزگار ہمیشہ غالب رہیں گے، اور سچے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جھوٹوں کی بڑی تعداد ہوگی، مگر یہ جھوٹے پانی کے بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے ابھریں گے ضرور، مگر جیت سچوں کے فیور میں جائے گی۔ اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، چاہے پتھر کو 200 منزلہ مکان میں لگا دیے جائیں وہ پتھر ہی کہلاتا ہے، اور ہیرا اگرچہ کیچڑ میں لپٹا ہوا ہو مگر وہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے۔ سونا اگر کسی نالی میں پڑا ہوا ہو وہ گولڈ گولڈ ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی اینٹ کو گنبد میں لگا دیا جائے وہ اینٹ اینٹ ہوتی ہے۔ لوگ لڑائی کریں گے مگر غلبہ سچائی کو ہوگا، لوگ جھگڑیں گے لیکن سچائی کے فیور میں جیت جائے گی۔ فرشتوں وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ شریروں کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے، جھگڑالوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے، مگر ایک سچے لاکھوں جھوٹوں پہ ہمیشہ غالب رہے ہیں، اور ہمیشہ نیک جھوٹ بدکاروں پہ غالب رہا ہے۔ جس کی پہلی تاریخ جناب آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے، شیطان سے جنگ ہوئی۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے سپیریئر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں اسے جہنم پہنچاؤں گا، مجھے مہلت دے دی جائے، میں اس کو جہنم پہنچانے کے لیے کوئی کسر میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کو مہلت اللہ نے دی کہ ٹھیک ہے تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، لیکن البتہ یاد رکھنا کہ میرے مخلص بندے ہمیشہ تجھ پر غالب رہیں گے، مخلص بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ کمزور قسم کے لوگ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، کمزور لوگ تیری پیروی کریں گے، لیکن جو تیری پیروی کریں گے ان پیروکاروں کو تیرے ساتھ میں جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا۔ میں نے خطرناک آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ دنیا جس دنیا میں انسان کو بنانے والا ہوں، یہ دنیا کی عمر عارضی ہے، اور اصل ہے وہ قائمی آخرت۔ جس جنت میں جناب آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے، اور جس جنت میں فرشتوں کا معلم الملکوت بن کر عزازیل شیطان بھی تھا، لیکن اس جنت سے نکال دیا گیا، ایک سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ جنت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ وہی ہے کہ دنیا کی عمر ایک دن یا آدھے دن اس دنیا کی عمر ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی عمر ہے یا تو 50,000 سال یا 25,000 سال۔ یہ انسانی تاریخ کا دن ہے۔ قیامت کا ایک دن، عالم آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں ایک دن نہیں، وہاں تو دائمی دن ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہے، یا ایک دن یا آدھا دن۔ ایک دن سے مراد 50,000 سال اور آدھے دن سے مراد 25,000 سال۔ تو انسانی تاریخ 25,000 سال کی ہے۔ 25,000 سال ابھی ہوئے نہیں ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بمشکل تمام 15,000 سال ہوئے ہیں۔ اور جو دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، اس کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ اب دنیا کی عمر موت مختصر باقی رہ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو کچھ بھی خبر دی تھی، اس میں سے لگ بھگ 80% وہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے۔ حضور نے کہا تھا، جناب جبرائیل امین نے جب پوچھا تھا کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیوں علامتوں کے بارے میں خبر بتائیں،
کہ قیامت آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی، جس کو دیکھنے کے بعد میں یہ جانوں کہ اب دنیا کا وناش ہونے والا ہے، اب یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ سرکار نے کہا تھا ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ اس قدر کثرت سے زناکاری ہوگی کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، یعنی نوکرانیوں کے ساتھ کثرت سے زنا ہوگا اور وہ حاملہ ہوں گی اور وہ اپنے مالک کے بچے کو جنم دیں گی۔ ناجائز اولاد میں، ناجائز بچوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے، آقا نے کہا کہ نافرمان اولاد زیادہ پیدا ہوں گی، یعنی وہ ماں جو قابل احترام ہے، جس ماں کے سامنے آنکھ نکال کے بچوں کو نہیں بولنا تھا، بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ ماں کو اپنی نوکرانی سمجھیں گے، اور اگر دو پیسہ کہیں گے بھی تو اس کو 2-4-10 بات کہیں گے، اور ایسا جیسے اس کے سامنے یہ ماں ڈری اور سہمی سی رہے گی۔ ان بچوں کے رحم و کرم پہ یہ زندہ رہ رہی ہے، جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اسے ماں سے آنکھیں نہیں ملانی چاہیے۔ 9 مہینے تک جس ماں نے پیٹ پر رکھا وہ انتہائی قابل احترام ہستی ہوتی ہے ہمارے نزدیک، اور جس نے 10 سال تک نرس کی طرح میری خدمتیں کی، وہ ایسا نہیں کہ میں 2 لقمے کھلا دوں جس میں احسان جتاؤں۔ مصطفیٰ نے کہا اخیر زمانے میں نافرمان اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا، یعنی مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، اپنے بیٹے سے ڈریں گی، اپنے بیٹے سے سہمی رہنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ نشانیاں واضح طور پر دنیا میں کافروں کے درمیان، یہود و نصارہ کی بستی میں، خود مسلمانوں کی بستی میں، کفار و مشرکین کی کوئی حیثیت تو ہے ہی نہیں۔ یہ کفار و مشرکین تو جانوروں سے بدتر ہے۔ ابھی دنیا میں خوب کما لیں کھا لیں، خربوں کا گھر بنا ہے، مگر انجام اس کا آگ ہے، انجام اس کا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر مسلمان ہو وشواس رکھنا پڑے گا کہ جو اللہ نے کہا سچ کہا، جو اللہ کا کلام ہے وہ سچ ہے۔ اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن چھوڑ کے کافر بن جاؤ، پھر کافر بنو اور بول دو کہ اللہ نہیں ہے، اور بولو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور بولو کہ جنت کا تصور غلط ہے، اور بول دو کہ جہنم غلط ہے، اور بول دو کہ دنیا خود سے بنی ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ان بولنے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ چاہے جو چاہے سو بولے، لیکن ایک مومن اسی وقت مومن ہوتا ہے جب وہ وشواس کرے کہ دنیا کا خالق اللہ ہے، وہ یقین کرے کہ یہ دنیا عارضی ٹیمپرری فانی ہے اور آخرت دائمی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا بس ایک قطرہ پانی کے برابر ہے اور آخرت مثل سمندر کے ہے۔ وہ یقین کرے کہ قیامت قائم ہوگی، اس دنیا میں ہر کیے ہوئے کا حساب وہاں ہوگا، ہر سیاہ و سفید کا حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ قال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن میں آیا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے، انسان کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں تھا، یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے میری ماں کو خبر نہ تھی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک عورت شادی سے پہلے اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں بچہ جنوں گی یا میں بانجھ رہوں گی، نہ باپ کو پتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی۔ اللہ کیا کہتا ہے، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، یعنی تیری ماں کی شادی سے پہلے، تیرے باپ کی شادی سے پہلے، یا پھر شادی کے بعد بھی جب تیری ماں حاملہ ہوگی، جب تو پیٹ میں تھا تو تیری ماں کو خبر نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، تیرے باپ کو خبر نہیں ہے کہ تو کیا ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا تیرا وجود نہیں تھا۔ تیری پیدائش سے پہلے تیرے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تیری پیدائش سے پہلے سماج کو نہیں معلوم تھا کہ محمد احمد پیدا ہونے والا ہے یا کوئی ہندہ پیدا ہونے والی ہے، سماج میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک پانی کی بوند سے اتنا بڑا وجود تیرا تیار کیا کہ اب تو صاحب کہلا رہا ہے، اب تو بیٹا کہلا رہا ہے، اب تو ملکہ کہلا رہی ہے۔ جس طرح کچھ نہیں تھا، اللہ نے ایک قطرہ پانی سے تجھ کو پیدا کیا، اسی طرح تجھے موت دے گا وہی خدا، اور تو قبر کی مٹی میں ملے گا، پھر تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے تھا کوئی جانتا نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد تو جب جل جائے گا، شیر کے پیٹ میں گل جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا یا آگ میں چل جائے گا، چاہے جس طرح سے تیری موت آئے، چاہے شیر کے پیٹ میں چلے جاؤ، چاہے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ،
जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, चाहे आग में जल जाओ, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पानी की कतरी से पैदा किया, उसी तरह तेरे जिस्म में एक जौहरे हयात है, जो न गलता है, जो न सड़ता है, जो न डूबता है, जो न राख होता है। उसी जौहरे हयात से फिर अल्लाह तुझे पैदा करेगा और फिर अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। और वो अल्लाह पैदा करने पर कादिर है। कुरान में कई जगहों पे आया कि जब मैंने तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए मुश्किल काम तो वो था जब मैंने तुझको पैदा किया, जब तुझे पैदा कर दिया, जब वो मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, तो फिर तुझे दोबारा जिंदा करना ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है। जब तेरा वजूद नहीं था मगर तू वजूद में तुझको लाया, और जब वजूद में लाया तुझे मिठा के फिर दोबारा वजूद में लाना, ये हमारे लिए कोई बईद बात नहीं है। मैं तुझे दोबारा पैदा करके तुझसे हिसाब लूंगा। तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने दौलत का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी को किस काम में लगाया, ये तो तुमको हिसाब देना होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, ना अपनी मर्जी से जाता हूँ, बल्कि अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह की मर्जी हमेशा गालिब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत औलाद जनूं, मेरी औलाद पोलियोग्रस्त, अपाहिज और माजूर पैदा होती है। ये इस बात की दलील है कोई तो है जो मेरी मर्जी को चलने नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि मैं सदा खुश रहूं, मगर हर दिन खुशी का माहौल 10% होता है और 90% गम का माहौल में बंदा जीता रहता है। जिंदगी में खुशी कम मिलते हैं, अक्सर गम ही मिलता रहता है। कभी बीवी की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी सेहत की तरफ से, कभी दामाद की तरफ से, कभी जिल्लत और रुसवाई की तरफ से। यानी ये समझ ले कि मुसीबतों में ये बंदा घिरा है। और कभी भी चैन सुकून के साथ बच्चे अच्छे रहे, बीवी अच्छी रहे, माँ बाप अच्छे मिले, पड़ोसी मेरे अच्छे रहे, मेरे दोस्त अच्छे रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं 95 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान की तरह बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है कि तू 50 साल की उम्र में 25 साल की जवानी जैसी सेहत पाले। जैसे 40 साल के बाद तू आगे जाएगा, कभी आंख में दर्द होगा, कभी दांत टूटेगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी टखने में दर्द होगा, कभी 2 रोटी पचा खाने के बाद उल्टी वॉमिटिंग होगी। ये इस बात की दलील है कि दुनिया में अब तेरे आराम के दिन खत्म हो गए। अब जब तू 40 से ऊपर गया, अब तू 40 से पहले वाली सेहत और तंदुरुस्ती मत तलाश करना। तो सेहत की तरफ से हम 24 घंटे लाहक है। अभी मैं जिंदा हूँ, 2 मिनट के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। यहाँ हमेशा मौत का खतरा, बीमारी का खतरा, औलाद की नाफरमानी का खतरा, मौसम की खराबी का खतरा, 24 घंटे यहाँ पॉसिबल इम्पॉसिबल होता रहता है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होता रहता है। ये हालात बताते हैं कि दुनिया का कोई संचालक है, दुनिया का कोई चलाने वाला है, दुनिया का कोई खालिक और मालिक है। ये इस बात की दलील है कि दूसरे मज़ाहिब में जो लोग नास्तिक है, जो खुदा का इनकार करते हैं या खुदा को मानते भी है तो चुचंदर बंदर सबको खुदा कहते हैं, तो उस तसव्वुर का कोई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कायनात का खालिक है और वह खालिक एक है, और वह खालिक न कोई पेड़ हो सकता है, न कोई दरख्त हो सकता है, न खुदा इस दुनिया का कोई बंदर हो सकता है, न छुछंदर हो सकता है, न गाय हो सकती है, न बैल हो सकता है, न सूरज हो सकता है, न चांद हो सकता है, न नदी नाला हो सकता है। चाहे बंदर 1000 उछले और कूदे, चाहे 1000 गिलहरी उछले कूदे, मगर वह जानवर है। तो जो एक खुदा में विश्वास न करता हो, 50,000 खुदाओं के सामने पेशानी टेकता हो, कभी चुचंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी सांप के सामने, कभी नदी के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने, जो जानवर के पाखाना को पाक समझता हो, उन नापाकों से तू डर रहा है, तू डरने के लिए पैदा हुआ है। गिलहरी को खुदा कहने वाला, बंदर को खुदा कहने वाला, चुचंदर को खुदा कहने वाला, ये तो चुचंदर से ज्यादा सलीम है, ये तो बंदर से ज्यादा सलीम है, ये तो जानवर से ज्यादा सलीम है। आदमी वही है जो खुदा वाहिद का परस्तार है। खुदा वाहिद का परस्तार हमेशा गालिब रहा है, क़यामत तक गालिब रहे। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। तू खुश हो जा,
کہ اللہ نے تجھے چھچھندر کی پجاریوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا. تو اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے تجھے جانور کے پجاریوں میں نہیں پیدا کیا. اللہ نے تجھے یہودی گھر میں نہیں پیدا کیا. اللہ نے تجھے نصرانی گھر میں نہیں پیدا کیا. اللہ نے تجھے جانور کے پاخانہ کو پاک سمجھنے والا نہیں پیدا کیا. اللہ نے تجھے وہ مذہب دیا ہے جس مذہب میں اللہ پاک، رسول پاک، خدا پاک، قرآن پاک، نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے. غسل کرنا ہمارے مذہب میں، وضو کرنا ہمارے مذہب میں، پاک کپڑا ہو، پاک جگہ ہو، پاک بدن ہو، صرف پاکی پیوریٹی والا مذہب اسلام، تقدس والا مذہب اسلام. ناپاک اور پاک میں جب جنگ ہوگی، چاہے ناپاکی ہزار اچھلے کودے، وہ ناپاک ہی رہے گا، اور یہ پاک چاہے تب کیوں نہ جائے ہمیشہ غالب ہی رہے گا. اس لیے ایک قوم مسلم، تمہیں ان حالات میں ان ناپاکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ساری زندگی ایک دن بھی پاک نہ رہا ہو، جو ایک چھوٹے سے لوٹا میں پانی لے کر اپنے جسم کو من دیتا ہو، جو کبھی پاک نہ ہو، تو یہ ناپاک تجھے کیا ڈرا پائے گا؟ یہ ناپاک کو ناچنے دے، اسے کودنے دے، اسے اچھلنے دے، اسے گانے دے. ناچنے والا کہیں غالب آتا ہے، کودنے والا کہیں غالب آتا ہے، چچندر کہیں غالب آتا ہے. غالب شریف آتا ہے، غالب سچا آتا ہے. اس لیے تو سچا ہے، تو ہمیشہ غالب رہے گا. تو پاک ہے، ہمیشہ غالب رہے گا. ناچنے والا کبھی غالب نہیں رہا. ناچنے والا سلی ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا ہمیشہ غالب رہا ہے، ہمیشہ غالب رہے گا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہودی نہیں بنایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نصرانی نہیں بنایا. ہم امریکہ کے کھرپتی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، سونے کا محل میرا ہوتا، میں سونے کی بت کو میں سجدہ کرتا. اس سے کھربوں گنا بہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غریب گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ کا احسان ہے کبھی چہرے پہ مایوسیت نہ رہے، کبھی چہرے پہ شکن نہ رہے. کیا تو چاہتا ہے کہ تو کافر گھر میں پیدا ہو، اربوں میں کھیلے، اور تو دنیا میں وقتی طور پر چند دن گزار لے، پھر جا کے خاموشہ جہنم کی آگ میں جلے؟ جب یہ نہیں چاہتا ہے تو غریبی پہ صبر کر، اپنی غربت پہ صبر کر، اپنی فقیری پہ صبر کر، اپنی عزت و کرسی پہ صبر کر. اللہ نے کہا ہے تو یہاں صبر کر، جنت کی ساری بہار میں تجھ پہ قربان کر دوں گا. دنیا میں تو صبر کر، انجام انتقا کامیابی تیرے لیے ہے، انتقا بلندی تیرے لیے ہے. پوری تاریخ بتاتی ہے. اللہ نے قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ کہا ہے تمہیں اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے. وہ اللہ ہے جس نے تجھے ایک کودتے ہوئے، جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یہ اسلام کا بیسک فارمولا ہے کہ قیامت پر یقین لانا، آخرت پر یقین لانا. اصل راحت وہاں کی ہے، اصل نعمت وہاں کی ہے، اصل زندگی کا مزہ، اصل مزہ وہاں کا ہے. اور اسی کو مصطفیٰ نے ہمیشہ اپنے گھر میں، اپنے صحابہ کے درمیان، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان ہمیشہ ہی کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. الہی آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. جس کی نظر آخرت پہ ہے اس کو دنیا کے تماشوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے، یہ ناچنے کودنے سے گھبراتا نہیں ہے. میرا قرآن کہتا ہے اگر تو تقوی کے ساتھ زندگی بسر تم نے کیا اور تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں خدا کی عبادت کے لیے، مجھے مرنے کے بعد حساب کتاب وہاں دینا ہے، اور اس پر وشواس نہیں کرے گا تو کافر کا جیسے جینا ہے جی لے. اگر مومن ہے، میرے محبوب کی کا تو پیروکار ہے، تو وشواس کرنا ہوگا دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے، اور یہاں کے پل پل کا حساب تجھے مرنے کے بعد دینا ہوگا. اور اگر تم نے تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری تو دنیا میں بھی عزت تمہارے لیے ہے، یہاں حکومت تمہارے لیے ہے، سلطنت تمہارے لیے ہے، اور مر گیا تو مصطفیٰ کی شفاعت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے.
دونوں جہان کی بھلائی مصطفیٰ کی غلامی میں اللہ نے پوشیدہ فرما دیا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اکثر اورات میں آیا ہے کبھی آسمان پہ غور کر بغیر کھمبے کے پیدا کیسے ہوا ہے, اس زمین پہ غور کر سمندر پہ زمین کیسے ٹکی ہے, کبھی پہاڑ پہ غور کر یہ پہاڑ کھمبا بن کر زمین کو کیسے روکے ہوا ہے, کبھی موسم پہ غور کر رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کر. یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ اللہ کا نظام بڑا اسٹیبل ہے, اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے. چاہے آدمی یہ بولے کہ رات ہی رہے گی, ان کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے, دن تو نکل کے رہے گا. چاہے انسان بولے کہ موسم سرد ہی رہے گا, ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, مگر گرمی کا موسم آ کے رہے گا, چاند نکل کے رہے گا, سورج ڈوب کے رہے گا, دن رات میں تبدیل ہو کے رہے گا, رات دن میں بدل کر رہے گی. یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ دنیا کا سارا کام سنیوجت ڈھنگ سے چل رہا ہے. اور اسی قدرت کے سسٹم میں سے ایک سسٹم یہ ہے, یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اور یہ انسان اگر اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے بتائے ہوئے مارگ پہ چلا تو بھلے ہی وقتی طور پر تھوڑی سی رسوائی یہاں ہو جائے, دائمی عزت تو اسی کے فیور میں ہے. دائمی جنت کا مالک تو یہی ہوگا جسے دائمی جنت میں پناہ دی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. تمہیں اگر کائنات کا خالق سمجھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لے, اگر تجھے دنیا کا نظام کیا ہے مصطفیٰ کے فرمان کو سن لے, حد حیات کیا ہے ممات کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے, عزت کیا ہے ذلت کیا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے, تیری رسپانسبلٹیز کیا ہے تیرا دائف بھی کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں اور زندگی گزاروں. اور حضور ہمیشہ ہی کہتے تھے دنیا میں اقتدار اگر تمہیں ملے گا اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے اسٹرگل چاہیے, اس کے لیے جدوجہد چاہیے. مصطفیٰ نے یہی کہا اگر تم مومن بن کے رہے گا تو غالب تو تجھے ہی ہونا ہے. اگر تم مومن بن کے رہا پھر کفار و مشرکین پہ فاتح تو بنے گا. ایک کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ ہے, پوری دنیا میں محمد ابن عبداللہ تنہا تھے. جب اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اس میں سے ایک 4 کی ٹیم تھی. آپ کی بیوی نے آپ پر ایمان لایا, آپ کے دوست ابو بکر آپ پر ایمان لائے, آپ کے چچازاد بھائی علی آپ پر ایمان لائے, آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے. یہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اللہ نے کیا کہا, حبیب صبر کرنا اور لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا, اور کبھی ان لوگوں کی زبردستی سے مت گھبرانا. یہ اس کی بدعملی پہ تنقید کرے گا, یہ کافر متلائیں گے, یہ کافر تم پر حملہ کریں گے, یہ جنگ کریں گے, یہ کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے, جہاد کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے. اے مصطفیٰ تو صبر کرنا, پھر جہاد کا قانون نافذ ہوگا. ان کی تعداد کو دیکھ کے مت گھبرانا, اپنی ٹیم اپنے وفاداروں کو لے کر میدان جنگ میں کود جانا. فتح میری طرف سے نازل ہوگی, تیری مدد کو فرشتہ نازل ہوگا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو گاہے بگاہے وقت سے قرآن نازل کر کے ساری سچائی سے باخبر اللہ نے کروایا. تو ہم نے یہی دیکھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے کیسے آیا ہے. سرکار دو جہاں سرکار دو جہاں اکیلے ہے, لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا. پھر وہاں سے دشمنی شروع ہو گئی. 3 سال کے اندر میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا. 3 سال میں طویل عرصہ ہوتا ہے, اس طویل مدت میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا. جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ 40 لوگ ایمان لے آ چکے ہیں, یہ ہمارے بتوں کو پورا کہتے ہیں, یہ نظریہ آخرت پیش کر رہے ہیں, یہ اللہ واحد کا نظریہ پیش کر رہے ہیں, ہم نے جو 360 بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے خانہ کعبہ میں رکھ دیا ہے, اس کی مخالفت کے کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا اس نئے مذہب کا خاتمہ کر دیں گے. اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہم اسے جینے نہیں دیں گے. دشمنی شروع ہو گئی وہیں سے. جس دن مصطفیٰ نے کہا کہ دنیا کا خدا اللہ ہے, میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں, جس طرح میں کوہ صفا پر کھڑا ہوں تیرے آگے کے منظر کو دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, اسی طرح اگر میں تجھ سے یہ کہہ دوں کہ ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے, کیا تم یقین کر لو گے؟ مکہ کے سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے سوائے سچ کے آپ کی زبان سے آج تک کچھ نہیں سنا. اگر آپ کہیں گے کہ ایک فوج حملہ ہونے والی ہے ہم سب یقین کر لیں گے. تو حضور نے کہا جس طرح میں اونچائی پہ کھڑا ہو کر تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تم میری بات یقین کر لے گا, تو اب تم سن لے,
मैं जिस दुनिया में खड़ा हूँ यहाँ से मैं आखिरत भी देख रहा हूँ, मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, मैं तुझे अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, मैं तुझे जहन्नम की आग से डराता हूँ। इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया का आगाज होगा वहाँ की खतरनाक मुसीबत से डराता हूँ। लोगों ने कहा कर ये क्या बातें ये कह रहे हैं कि आखिरत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, कि अजाब से डरा रहे हैं। आपके चचा अबू लहब उन्होंने बदजबानी शुरू कर दी, मक्का के लोग मुंतशिर हो गए, मगर सरकार दो जहां तन्हा है और सारे लोग मुंतशिर हो गए। हुजूर ने तबलीग दीन नहीं छोड़ा। आका अलैहिस्सलाम के हुक्म था कि आपको तबलीग करते रहना है, हालात चाहे जैसे भी नासाजगार हो, अल्लाह आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, आपको तबलीग करते रहना है। कोई दूसरा शख्स होता अपनी इस रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 40 साल की जिंदगी जिस समाज में मुस्तफा ने इज्जत और आबरू के साथ गुजारी थी, ये लोग उसे अमीन कहते थे, लोग सादिकुल वाद कहते थे। दुनिया के सच्चे सबसे सच्चे मोहम्मद अरबी है, वादे के पक्के मोहम्मद अरबी है। यहाँ तक कि 3 दिन तक एक जगह खड़ा रहना पड़े, खड़े आप रहा। मक्के वालों को बताया वादा वफाई क्या चीज होती है। मुनाफिक में 4 आदतें पूरी होती है। जब वह वादा करता है तो वादा की मुखालफत करता है, जब वह बोलता है झूठ बोलता है। मुनाफिक के खालिस की 4 अलामत है। अरबाउन मन कुन्ना फीहि काना मुनाफिकन खालिसा। हुजूर फरमाते हैं जिस आदमी में ये 4 आदत हो वह पक्का मुनाफिक है। अगर एक आदत है तो मुनाफिक की एक आदत है, अगर 2 आदत है मुनाफिक की 2 आदत है। मुनाफिक का मतलब जबान पे कुछ है और दिल में कुछ है, जिसको आप अपने देहाती जबान में कह लें ये दोगलापनी, यानी जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, वो खतरनाक आदमी होता है। मुस्तफा कहते हैं जिसमें 4 क्वालिटी हो पक्का मुनाफिक है वो। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वह बात करे तो झूठ बोले, जब बंदा बात करे झूठ बोले, प्योर मुनाफिक है वो। इज़ा आहदा गदर, जब वह वादा करे, when he makes a promise he breaks it, जब वो वादा किसी से करता है उसे तोड़ देता है। वादा ब्रेकिंग करना ये मुनाफिक की आदत होती है। जब वह बोलता है तो झूठ बोलता है। इज़ा खासमा फजर, हुजूर कहते हैं मुनाफिक जब झगड़ा करता है तो झगड़े में गाली बकता है, सामने वाले आदमी को बुरा भला कहकर उनको जलील और बेइज्जत करता है। तो लड़ाई झगड़े में दलील दे दी जाए। अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको गाली दे दूं। और आजकल 90% लोग इसी घटिया क्वालिटी के हैं। लड़ाई हो अपनी जगह होती है, फौरन गाली देता है। बड़े बड़े आलिमों से गलती हुई फौरन लोग गाली देने लगते हैं। ये मुनाफिक की अलामत है। इज़ा खासमा फजरा, जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। एंड ही आर्ग्स ही अब्यूज, यानी जब वह आर्ग करे, डिस्कस करे, डिबेट करे, बहस करे, किसी से बात करे तो गाली बके, इंसल्ट करे, उसकी तौहीन करे। मुनाफिक की 4 क्वालिटी हुई, यानी जब वह बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसको कोई अमानत सुपुर्द की जाए उसमें खयानत करे। चाहे मस्जिद का पैसा हो, जलसे का पैसा हो, जलसे का पैसा जो जिस काम के लिए दिया है उसी काम में खर्चा किया जाए। और उसके अलावा अगर पैसा बच गया हो उसको दूसरे काम में लगाना है तो आदमी पूछे उन चंदा करने वालों से कि तुमने जलसा के लिए चंदा दिया था, पैसा 2 लाख बच गया है, अब उसे हम मस्जिद में लगाना चाहते हैं। चंदा देने वालों से पूछना होगा, बगैर उसकी मर्जी के अगर आपने लगा दिया ये गलत काम हुआ। इज़ा तुमिना खाना, मुनाफिक की अलामत है कि when he is trusted, he is interested by something, जब किसी चीज के जरिए उसको अमानत सौंपी जाए तो वह बिनीच से वह उसके साथ खयानत करता है। यानी जब अमानत रखी जाए खयानत करता है। मस्जिद का मुतवल्ली बने, मदरसे का मैनेजर बने, गांव का जिम्मेदार बने, गांव का जिम्मेदार बने, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बने तो ट्रस्ट को बहाल रखना चाहिए। ट्रस्ट का माने विश्वास को बहाल रखना चाहिए। अभी हालात देख सकते हैं, कयामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है, मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, नाजायज औलाद की तादाद बढ़ जाएगी। ये कयामत की अलामतों में से है। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से झूठ बोल जाते हैं मैंने तलाक नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, जब किसी काजी के पास फतवा मसला आएगा और वहां कोई मुकन जाएगा तलाक देने वाला तो काजी तो बोलेगा तलाक नहीं होगी। अब वहां कोई गवाह नहीं रहेगा, काजी तो बोलेगा कि तलाक नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। जब अल्लाह के नजदीक तलाक हो गई उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया भले ही समाज वाला नहीं जाना, लेकिन अब तो वह बीवी उसके लिए अजनबी औरत की तरह है। उससे सोहबत करना ज़िना खालिस, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो वो बिल्कुल नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद की से भलाई की कोई उम्मीद
उम्मीद रही है। जब समाज में मदरसे का अदब ना रहे, मस्जिद का अदब ना रहे, मौलाना का अदब ना रहे, जो दीन सिखाने वाला उसका एहतराम ना रहे, मुर्शिद का अदब ना रहे, जलसे का अदब ना रहे, बड़े बूढ़ों का अदब ना रहे, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है, इसकी असल में खता है। ये नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। बूढ़ों का मजाक उड़ाना, आलिमों का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, मस्जिद मदरसे का मजाक उड़ाना, ये कुफारो मुशरिकीन तो अपनी मंदिरों के सामने ढोल बजा रहे हैं, वहां नाच गा रहे हैं। मगर हमारे कुछ शरीर किस्म के बच्चे शादी ब्याह के मौके पर वो सारा आपा खो देते हैं और मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, अज़ान के वक्त में डीजे बजाते हैं, जमात अंदर हो रही है मगर यहाँ डीजे बजाते हैं। अगर कोई बोले उससे डर जाते हैं, अगर कोई बोले हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है। इस तरह के शरीरों की तादाद में इजाफा हो गया। उससे तो बेहतर वो काफिर है जो काफिर मेरी मस्जिदों के सामने डीजे बंद कर देता है, मेरी मस्जिदों के सामने ड्रामा बंद कर देता है, मस्जिदों से आगे गुजरने के बाद वो करता है। नहीं सुना आपने खड़गपुर बंगाल में आज से कई साल पहले लाखों की तादाद को संबोधित करने वाला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जब आजान बाजू की मस्जिद से आवाज आई, उन्होंने माइक को झुका दिया और जब तक आजान होती रही उन्होंने अपना भाषण बंद किया। भले ही उनका काम जो भी हो, उनका मिशन जो भी हो, मिशन क्या है, हम यही उम्मीद करें कि मोदी जी हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में मुसल्ला बिछा देंगे, हमारी मस्जिदों में गीजर लगा देंगे, हमारी मस्जिद में कूलर लगा देंगे। वो आरएसएस के कैडर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मगर वो आदमी है आरएसएस का, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो बता दिया कि जब मैं चाय बेचता था तो भी मैं एक पक्का हिंदू था, और जब मैं विधायक बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब वो संसद बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूँ। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का फॉलोवर, अपने मजहब का काम कर रहा है। जिस तरह वो पंडित जी विधायक था, वही गिरवा किस्म की लुंगी और गिरवा किस्म का हाफ कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वो संसद भवन दिल्ली गया तो लिबास नहीं बदला, और जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो भी लिबास नहीं बदला। वो तो हमारा बेटा है। जब वो गरीब सलाद छाप रहता है, मौलाना के पास दिन रात रहता है और दुआएं लेता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा किसी काबिल बन जाता है, उसी मौलाना की तौहीन करना, उसकी कीमत करना, उसकी बुराई करना इसका मशगला बन जाता है। जब तकरीब है, नेक लोगों से दोस्ती है, जहाँ पैसा आया डकैतों और चोरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले रहता था पंजाबी कुर्ता पहनता था, पायजामा पहनता था, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ वो वार्ड का मेंबर बन गया, पार्षद बन गया, साहब वार्ड का मेंबर बना। अब उसकी बोली बदल गई, अब मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ। अब जब विधायक बन गया उसका लिबास और बदल गया, उसकी बोली और बदल गई। अब उसके दोस्त शराबी, उसके दोस्त होंडा, उसके दोस्त लुच्चे लफंगे, अब वह डकैतों के साथ दोस्ती कर रहा है। अगर वह दिल्ली संसद भवन पहुंच जाए, अब 5 स्टार होटल में रहना, शराब पीना। मैंने बरेली शरीफ के उर्स रज़वी के मौके पर कहा था, आपको शिकायत है इस पंडित जी से, ये हमारे मदरसे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये आरएसएस का लीडर ये आपके मदरसे में आपकी कालीन बिछा देगा, आपके बच्चों का कुरान शरीफ बांट देगा, आपके मदरसे में तनख्वाह बढ़ा देगा, आपके बच्चों की अपनी खिदमत करेगा। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का वफादार। जब वह एक महंत था तो भी था, जब वह संसद भवन पहुंचा न जबान बदली न लिबास बदला, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा न उसकी जबान बदली न उसका लिबास बदला। वो अपने मिशन का हमदर्द मुखलिस है, उस मिशन का काम कर रहा है। वो आरएसएस का लीडर है, अपना काम कर रहा है। कम से कम अगर आपका ज़मीर जिंदा है, उस पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, उस मोदी जी से सबक हासिल कीजिए कि आप जब गरीब रहते हैं तो नमाजी रहते हैं, मालदार हुए तो बेनमाजी हो जाते हैं। आप जब छोटे पद पे होते हैं तो आलिमों से रास्ता रहता है, और जब बड़े पद पे चले जाते हैं लिबास भी बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, फिर कोटे पे हाजिरी देना और शराब के नशे में धुत रहना ये आपका मामूल बन जाता है। आप बदल जाते हैं। इन पंडित जी से सबक हासिल कीजिए। जब वो नहीं बदला, न ज़बान बदली, न लिबास बदला, न मिशन बदला, तो तुम भी कसम खा ले कि गरीब रहेंगे मुहम्मदी बन के रहेंगे, मालदार रहेंगे मुहम्मदी बन के रहेंगे। मेरा लिबास इस्लामी होगा, मेरी बोली इस्लामी होगी, मैं गरीब रहूंगा तो भी मोमिन रहूंगा, अरबा में खेलूंगा तो भी मोमिन रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हर महाज पे कामयाब तू होगा। अल्लाह का वादा है, तुम मोमिन बन जा, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत वहां तेरे।
मजलिसों में ऐसी गुफ्तगू होती है हालत हाजरा के पेश नजर ये ईमान को मजबूत कर ले, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। ऐसे जलसे जब हो, ऐसी गुफ्तगू होती है तब जलसा बरूकार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, मोमिन के लिए इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिल मुमिनीन। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत जो अल्लाह रसूल को माने उस मोमिन के लिए है। तो अल्लाह ने कहा मोमिन के लिए इज्जत है, तो मोमिन बन के रहा जाए, न कि तो पैसा हमें काफिर बना दे, न कि हमें लड़की का चेहरा काफिर बना दे, न कि हमें कोई पोस्टर सब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया, वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है उसका मजहब है, वह बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक कतार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां, इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी। उनके मेहनत से अपने मजहब का काम कर रहा था। इन कतारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, इन खसीसों हसीनों की वजह से 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन अपने बच्चों को तो इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी कुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, या बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें न हो, बाकी व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे न गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो, इतना ईमान स्ट्रॉन्ग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी खुदी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकार दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा, इसलिए इस तरह के वसवसात मेरे दिमाग में आने लगे, इस तरह के दिन हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी, किस पर जो हाथ का इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दे तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिब इख्तियार मुस्तफा, साहिब मोजज़ात मुस्तफा, साहिब तसर्रुफात मुस्तफा, जिनको अल्लाह ने कहा था मोहम्मद अगर आप चाहे तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे में चला दूं, और बाहर गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। और हुजूर ने कहा नहीं ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो, और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र यानी एक दिन खाना खाओ मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये दलाइल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं पकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है, इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर देता है, इनकी इस्तिकामा, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान न मानता हो उन शरीरों को लात की जबान चाहिए, उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बना
बनाता है। ये हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुज़दलिफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुज़दलिफा, अभी अरफात, अभी मुज़दलिफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, ये क्या चीज है? ये जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तुम एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहाँ से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहाँ से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा। आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो पहलवान है। तो पहलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। 4 भाई शीशा पिलाही की दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब, काले गोरे, मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब, अमरीकी और बरतानवी वो सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं, ये मराठी है, हम अरबी हैं, ये अजमी है, ये अजमी क्या जाने इस्लाम क्या चीज है। हम अरबी हैं, अरब में इस्लाम का सूरज चमका, हमसे बड़ा मजबूत मुसलमान कौन होगा? इस तरह से आपस में तेरी हवा निकल जाएगी, तू कमजोर हो जाएगा। अगर तू 1 लाख भी रहेगा, आपस में टूटा रहा तो 10 आदमी मिलके चुन चुन के सबको मार डालेगा। एक मजबूत कौम हो, खैर उम्मा तुम हो, मजबूत कौम तुम हो। अल्लाह को ताकतवर मोमिन पसंद है। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिन अल मोमिनिल ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात तक 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकतवर मोमिन अरफात से लेकर मुज़दलिफा 1 घंटे में पहुंच जाएगा और कमजोर बस पे बैठने वाला वो 10 घंटे के बाद पहुंचेगा और तू 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और हर कदम पे 6 लाख 6 करोड़ नेकियां तेरे नामे आमाल में लिखी जाएंगी। आला हजरत ने कदम को गिना है, मक्का से अरफात तक कितने हजार कदम होते हैं और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां। आला हजरत ने लिखा है 78 खरब 76 अरब, इतने करोड़, इतने लाख नेकियां उसको मिलेंगी जो मक्का से पैदल अरफात हज करने के लिए जाएगा। तो इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। तो कमजोर आदमी जो 10 कदम चले, गुटखा खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर और साहब कहे कि गुनाह करके, सजदा ना करके जो अंदर से खोखला हो जाएगा, वो तो 10 कदम चलने के बाद सीना पकड़ के बैठ जाएगा। दुश्मन का गांव पे हमला करेगा, बहनों की आबरू लूट के चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं कि मैं उसका देना तोड़ दूं, मैं उसके हाथ को तोड़ दूं, मैं उसकी गर्दन काट दूं। जो मेरी माँ बहन बेटी की आबरू पे पूरी निगाह डाले, मैं जिंदा रह के क्या करूं? पहले मैं उसकी गर्दन काट दूं। गर्दन काटने के लिए ताकत चाहिए, उसके सामने चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, उसको मलूम करने के लिए ताकत चाहिए। और जो खुद दो चार मिनट बोले और उसकी आवाज बंद हो जाए, जो खुद 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ जाए, जो 10 मीटर आगे चले वह घुटना पकड़ के बैठ जाए। इसलिए मुस्तफा ने कहा ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू गरीब रहना ये चलेगा, मगर तू कमजोर मत रहना, तू बीमार मत रहना, तू ताकतवर रहना। तू गरीब रहना कोई ऐब की बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गरीब रहे, अंबिया कराम गरीब रहे, उनके घर में एक दिन का खाने की रोटी नहीं मिलती थी, कई दिन का फाका होता था। खुद दुनिया के खजाने का मालिक मुस्तफा जब अपने घर में दाखिल होते और अपनी बीवियों से कहते घर में खाने को कुछ है, और जब जवाब मिलता कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हुजूर ये नहीं कहते कि या अल्लाह मैं तेरे सारे पैगंबर का सरदार, मैं तेरा महबूब, मैं बहुत बड़ा तेरा चहीता, मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है। नहीं, मुस्तफा ये कहते थे मरहबा शाइर सालिहीन, यानी मरहबा ये अलामत नेकों की है। जब वो घर में आए तो घर में खाने को कुछ न मिले, ये सालिहीन की अलामत है। गरीब रहना
ऐब की बात नहीं है। हराम के पैसे से मालदार बनना, हराम के पैसे से मकान बनाना, हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना, हराम के पैसे से मॉल बनाना, हराम के पैसे से वुडलैंड का जूता पहनना, हराम के पैसे से ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनना, जब तक यह कपड़ा रहेगा एक एक धागा उस पर लानत बरसाएगा। जब तक वो हराम का मकान रहेगा एक एक ईंट उस पर लानत बरसाती रहेगी। जब तक वो हराम के पैसे की गाड़ी रहेगी बकरी की हर चाल उस पर लानत बरसाती रहेगी। तो मोमिन किराए के घर में रहेगा, यह ऐब की बात नहीं है। मोमिन पैदल चलेगा, ऐब की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अंबिया और मुर्सलीन भी पैदल चले, बकरियों को चलाया, वो मामूली से घर में रहे, ये ऐब की बात नहीं है। अलबत्ता हराम खाना ये ऐब की बात है, हराम पहनना ये ऐब की बात है, हराम के पैसे से घर बनाना ये ऐब की बात है, नमाज़े पंजखाना छोड़ना ये ऐब की बात है, झूठ बोल के सिक्के कमाना ये ऐब की बात है। उससे तू अंदर से खोखला हो जाएगा, तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो निकल जाएगी। ये काफिर तुम्हें निगलने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि तेरी हैबत तो तेरी हैबत का राज सच्चाई है, तेरी हैबत का राज हलाल खोरी है, तेरी हैबत का राज सजदा है, तेरी हैबत का राज रोजा है, तेरी हैबत का राज हज है, तेरी हैबत का राज सदाकत पे बदली तेरी जिंदगी है। और जब इन उसूल से हट के काफिरों की तरह तू नंगा हो जाएगा, पैसा चाहिए चाहे जैसा हो, चाहे हराम का हो हलाल का हो, नमाज छूटे रोजा छूटे मगर माल चाहिए, फिर ये चाहेगा कि काफिर पे मैं गालिब आ जाऊं, मेरी हैबत उस पर हो, नहीं होगा ऐसा। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और हराम खाएगा तो दुआ रद्द कर दी जाएगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, एक मुसाफिर दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब या रब। अब लोग देखने वाला कहता है जो मांगेगा अल्लाह दे देगा, क्योंकि इस हालत में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल कर लेता है। और मुस्तफा कहते हैं कैसे दुआ कबूल होगी? मतअमहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, उसका कपड़ा तो हराम का है, उसके पेट का दाना तो हराम का है, उसके पेट का मशरूब तो हराम का है। तो हराम खाकर कोई काबा चला जाए और काबे में दुआ करते खिलाफे काबा पकड़ के मर जाए, बुजुर्गों ने कहा है नहीं होगी दुआ कबूल, काबा में जाके मर क्यों न जाओ। हलाल खाकर हज तुझ पर फर्ज नहीं हुआ, तेरे पास माल नहीं है, तू हज को नहीं जा पाया, हज सब पर फर्ज नहीं है, हज है साहिबे इस्तिताअत का फर्ज। जब तुझ पर फर्ज है नमाज, जिस नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, वो नमाज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप भीख मांग के मदीना और मक्का जाने की ख्वाहिश दिल में आ रही है, ये शैतानी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश मलकूती नहीं है, ये ख्वाहिश शैतानी है। इसलिए है कि नमाज फर्ज आज़म है, जो फर्ज आज़म नहीं अदा करता ये मदीना जा रहा है, सरकारे दो जहां की नाराजगी तो नाराजगी मोल लेने जा रहा है। सरकारे दो जहां नाराज हुए, नमाज उनकी आंखों की ठंडक है, नमाजें छोड़ के मदीना जाके मर क्यों न जाओ, कुछ नहीं मिलेगा मदीने में। तो लाखों वहाबी है, मुस्तफा के गुस्ताख है, तो साल में 2 बार जाता है, वो तो 24 घंटे वहां रहता है, तो फिर क्या कहेगा उसका? पता ये चला कि शरीयत की मुखालफत करके नफ्स की ख्वाहिशात के आगे जाना, जो चीज जरूरी है उसको गैर जरूरी बना देना, और जो जरूरी नहीं है उसको अपने लिए जरूरी मान लेना, वह शख्स अच्छी ख्वाहिश का मालिक है, जो नमाज़े पंजगाना अदा करने के साथ मदीने की हाजिरी की भीख अल्लाह से मांगे, इलाही तू मुझे मदीने पाक दिखा दे, अपना हरम दिखा दे। तो अल्लाह से भीख मांगे, मक्के लोगों से भीख मांगे कि हमको मदीना दिखा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। ये शैतानी ख्वाहिश है, ये मलकूती ख्वाहिश क्या है? वो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ता है, जो फर्ज है वो अदा करे, जो फर्ज नहीं है उसके लिए ज्यादा लालायित न हो। फर्ज है, फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, इसको करे। ज़कात गरीबों पे फर्ज नहीं है, कुर्बानी गरीबों पे वाजिब नहीं है, सदक़े फित्र गरीबों पे वाजिब नहीं है, हज गरीबों पे फर्ज नहीं है। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसके लिए शौक पालना, और जो फर्ज है 5 टाइम, 1 टाइम छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, इसको छोड़ना और मदीने की हाजिरी की ललक दिल में पैदा करना, ये ललक, ये शौक, ये डिजायर, ये विशेष, ये शैतानी विशेष है। ये मलकूती ख्वाहिश वो है कि नमाज पढ़ने के साथ साथ रब्बे कदीर से भीख मांगे, रब्बे आला से तन्हाई में भीख मांगे, तहज्जुद के वक्त में भीख मांगे। जो दुआ रब से की जाती है फिर रब वहां से देता है
जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। इसी बुजुर्गों ने कहा कि हराम खा के या हराम के माल से 50 बार उम्रा कर ले और 50 हज कर ले और खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, तेरी दुआ रद्द हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल जरूरी है, और हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल न हो, हलाल खा के वो दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाए। ये है इस्लाम। तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, हज़रते अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब किबला। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का बेसिक फार्मूला। अपने मन से घुसेड़ के इस्लाम में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना, अपनी तरफ से इजाफा कर देना, या अपने मन की बात बोलना, अपनी ख्वाहिशात की बात बोलना नहीं चलेगा। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। मुस्तफा अदानी रहमत फरमाते हैं, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे, नफ्स की पैरवी न करे, नफ्स की पैरवी न करे, अमल खैर करे, और मरने के बाद की जो दुनिया है उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करता रहे, वो अक्लमंद है। और बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स जो कहे उसके पीछे चले, नफ्स बोले सोया रहो या सोया रहे, नफ्स बोले अभी आज ये खाओ, ये खाता रहे, नफ्स बोले ताड़ी पियो पीता रहे, नफ्स बोले शराब पियो पीता रहे, और ये बोले कि चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा, चलो अल्लाह माफ कर देगा। यानी दुनिया के बारे में ये अहमद ये नहीं बोलता है, खेती नहीं करूंगा, चलो अल्लाह ताला दे देगा, मैं दरख्त नहीं लगाऊंगा, अल्लाह मेरे घर का आम पहुंचा देगा, मैं दुकान में नहीं बैठूंगा सुबह से शाम तक, 5 शाम के टाइम में पैसा गल्ला में मेरे घर में पहुंच जाएगा। नहीं, ये अहमद हो चाहे जिस तरह से बेवकूफ हो, ये इस मामले में चौकन्ना अक्लमंद बन जाता है, ये वाइज बन जाता है कि नहीं साहब अल्लाह रुज़ी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत में जाना होगा, मुझको तो रोपा करना होगा, मुझको तो गेहूं डालना होगा, मुझको तो मक्की लगाना होगा, मुझको तो आलू रोपना होगा। तब अल्लाह एक आलू रोपेंगे तो 50 आलू देगा, एक दाना डालेंगे तो अल्लाह 1000 दाना गेहूं का देगा। जब दुनिया के बारे में तू ये फॉर्मूला रखता है कि अल्लाह रुज़ी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह रुज़ी देने वाला है 25 साल पढ़ना होगा, फिर 25 साल नौकरी करनी होगी, तब हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अगर पढ़ लिया अल्लाह चाहेगा नौकरी मिल जाएगी, घर में हम बैठे रहे, अल्लाह चाहेगा तो मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह सोच शैतानी सोच है जो रहमान के फरमान की अनदेखी करे, खुदा के कानून को तोड़े और यह उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह दे देगा। तो जब यही फॉर्मूला है कि अल्लाह माफ कर देगा, जैसे हम जिए अल्लाह माफ कर देगा, जैसे नमाज ना पढ़े अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं रखे अल्लाह माफ कर देगा, छुट में हिम्मत मेहनत जिहाद न करे अल्लाह ताला हमें काफिरों पे गलबा दे देगा, ये काफिर जलील हो जाएगा और हम हाकिम बन जाएंगे, हिंदुस्तान की गद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी, इसराइल के यहूदी के टैंक में कीड़ा फर जाएगा और फिलिस्तीन के मुसलमान उस जंग को जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में अल्लाह की कि हम तमन्ना शैतानी करें और रहमान की मदद नासिल हो जाए, नहीं होता है। जब तुम दुनिया के मामले में चौकस है कि हमें चाहिए गेहूं तो खेत में डालना होगा, चाहिए आम तो पेड़ लगाना होगा, चाहिए नौकरी तो मेहनत करनी होगी, चाहिए पैसा तो बिजनेस करना होगा, तो जिस तरह दुकान से पैसा चल के घर में नहीं आता, दुकान में बैठने से आता है, तो फिर तुमने आखिरत का फॉर्मूला तुमने सस्ता क्यों बना लिया कि नमाज छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, हज पर ज़हर नहीं करे अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं निकालते अल्लाह माफ कर देगा। निकलना था 1 करोड़ में 2.5 लाख तो 50,000 निकाल के चुप हो गए, 50,000 हमने निकाल दिया, अरे जो हुआ वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज पढ़ने से पहले वुजू ऐसे करे, अरे मौलाना साहब क्या फालतू की बातें बोलते हैं, अगर मैंने वुजू किया ना अल्लाह माफ कर देगा। खैरात सही करो तब कानून है ये, चाहे तुम डीएपी की जगह तो यूरिया खेत में डाल देगा, फसल पैदा नहीं होगी। जहाँ पानी डालना है पानी नहीं देगा, बोलेगा ले अल्लाह चाहेगा तो धान दे देगा, गेहूं दे देगा, तो वहां बोलेगा नहीं, ये साफ्ता है, ये उसूल है, ये नियम है, नियम के मुताबिक यूरिया जब देना है जब देना है, डीएपी जब देना है जब देना है, पानी जब
कब देना है, जब देना है। उस खेती के एक्सपर्ट माहिरीन से मैं पूछता हूँ कि साहब आप खेती कैसे करते हैं, आप शानदार फसल कैसे पैदा करते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं, उसके नियम के मुताबिक मैं खेती करता हूँ। ये हो गया दुनिया का मामला। ये कलवा भी चौकस है, ये बुद्धू भी होशियार है, लेकिन आखिरत के मामले में बड़े बड़े गोरे, बड़े बड़े दुनियावी पढ़े लिखे ये सब अहमक और बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए अल्लाह माफ कर देगा, चलिए अल्लाह माफ कर देगा। नमाज नहीं भी पढ़े तो अल्लाह माफ करने वाला है। यह है शैतानी जज्बा। इसलिए कि दुनिया के मामले में तू नहीं बोलता कि मैं मेहनत नहीं भी करूं तो भी दाना मेरे घर में आ जाएगा। यहाँ तू अकलमंद है कि नहीं जाऊं खेत तो दाना नहीं आएगा। तो यही बात आखिरत के बारे में भी सोच ले कि जिस तरह दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, नौकरी करनी होगी, तब पैसा आएगा। उसी तरह ये भी सोच ले कि दुकान गए, खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। रोजा रख के बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। हज और ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। अगर ये फार्मूला हो तो खेत भी बनता जाएगा, मस्जिद भी बनता जाएगा, तो यहाँ भी खुशहाल रहेगा, और जब मरेगा तो जन्नत की बहार है, उसका इस्तेमाल करने को देगा। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत का अमल करता रहे और डरता रहे, अल्लाह से रोता रहे। हज तो मैंने 5 बार कर लिया, इलाही अगर तुमने रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने 50 बार उम्रा तो कर लिया, अगर तुमने मेरे चेहरे पे उम्रा को मार दिया कि तेरा माल मशकूक था तो फिर मेरा क्या बनेगा। नेकी करे डरता रहे, रोता रहे, और बुराई करे तौबा करता रहे, सहनता रहे। नेकी के बावजूद इतराए नहीं, सहते, और बुराई के बावजूद भी इतराए नहीं, बल्कि पेशानी झुकी रहे, ज़बान पे इस्तिग़फ़ार रहे। और ये है मोमिनाना खसलत। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे। ऐसा नहीं होता है। मुस्तफा जाने रहमत के फॉलोवर 40 हुए 3 साल की मुद्दत में। काफिर की नजर पड़ गई, अरे एक अकेले थे, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, अब इनके फॉलोवर 40 हो गए। उमर जैसे लोगों ने कलमा पढ़ा, हमजा जैसे लोग मक्का के बहादुर ने कलमा पढ़ा। अब अबू जहल को उल्टी होने लगी, अबू लहब को मतली होने लगी, उत्बा और शैबा को अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये मेरी सरदारी, उस सरदारी के बावजूद एक यकीन और वो हिकारत से कहते थे कि ये इब्ने अबू कहाफा, वो कहते थे कि ये फला देहाती का बेटा, ये फला देहाती का इब्नो अबी कबशा, वो जो कल्लेमो मिनस समा, इब्ने अबी कबशा यानी देहाती का बेटा। चूंकि सरकार दो जहां वो मक्का से निकल के वो कबीले बनु साद पहुंचे थे। कबीले बनु साद में आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, इसीलिए मक्का के लोग उसे कहते थे ये देहाती का बेटा। जबकि मक्का उम्मुल कुरा है, उस उम्मुल कुरा में मुस्तफा पैदा हुए और सबसे बड़े ऊंचे खानदान में मुस्तफा पैदा हुए। लेकिन ये डाउन करने के लिए और अपने नफ्स की जो ख्वाहिश थी उसको उसकी तकमील के लिए अंदर में जो हसद और जलन था उसको निकालने के लिए हुजूर को कहते थे ये इब्नो अबी कबशा है, ये फला देहाती का बेटा। कहता है कि आसमान से मुझ पर वही नाजिल होती है, चिढ़ाने के लिए इब्नो अबी कबशा कहता था, देहाती का बेटा। और कहता था कि बस इनके मानने वाले फॉलोवर चंद देहाती हैं और चंद कम पढ़े लिखे लोग हैं और गरीब लोग हैं, यही इनके फॉलोवर हैं। यह लोग तो एक झटके में मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे। उन लोगों ने आपस में मीटिंग की, इस्लाम के खिलाफ एक मंसूबा तैयार किया कि जो भी कलमा कहेगा उसे फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा। ये 40 हो गए, हमने तो ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो सोचा था कि 4 ही लोग रहेंगे, मगर आज 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। कि आजमाइश शुरू है, ट्रायल शुरू है। जो कलमा पढ़ेगा उसे आग पे लेटा दिया जाता था। इस कदर चर्बी पिघल की थी कि आग राख हो जाती थी। ये सजा किस बात की थी? कलमा पढ़ने की सजा थी। तुमने मोहम्मद अरबी का साथ क्यों दिया? हज़रत खब्बाब को इस तरह आग पे लेटा दिया कि बदन की चर्बी से आग बुझ गई। ये सजा किस बात की थी? इस बात की थी कि इसने कलमा पढ़ा है।
मोहम्मद अरबी का साथ दिया है, सूली पे लटका दिया। सजा किस बात की थी? जिसने मोहम्मद अरबी का साथ दिया था। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के उसको मारा गया, धुआं दिया गया ताकि इसका दम घुट जाए, हम मर जाए। ये सजा किस बात की थी? ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रहा है। हम लोग आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, और कभी कभार इसराइल को थूकने के लिए उसके खिलाफ को कोई जुमला बोल देते हैं। एक दिन भी ऐसा न हुआ कि 5 दिन रोजा रखे और बता दें इस रोजा रखने की हालत में कि खजा के भूखे प्यासे मुसलमानों का मैं रोजा रखे साथ दे दूं और उनके लिए मैं दुआ करूं, कभी नहीं हुआ। आराम से तीनों टाइम खाना है, आराम से ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, और ये हो गए पक्के मुस्लिम, पक्के मुस्लिम। और वहां इस्लाम लाने के बदले में चटाई में बांध के धुआं दिया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में सूली पे लटकाया जा रहा है, इस्लाम लाने के बदले में घर में आग लगाई जा रही है, इस्लाम लाने के बदले में आदमी को रस्सी में बांध के पीटा जा रहा है। सहाबा कहते थे सरकार ये कब तक ये दिन रहेंगे, कब तक आजमाइशों के दिन चलेंगे? हम तो बाथरूम जाते हैं बाहर बैतुल खला, वहां भी एक खौफ सा लगा रहता है कहीं कोई काफी मेरी गर्दन काट न दे। ये खौफ का दिन कब तक रहेगा? हुजूर ने कहा था घबराओ मत, वो दिन आने वाला है। इतना अमन कायम हो जाएगा कि एक औरत इराक से चल के अकेली तवाफे काबा करने आएगी और तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला न होगा कि कौन है, तू कहां से आई है। हुजूर ने कहा था वो दिन आने वाला है जबकि रूम के सबसे महलों पे तेरी सल्तनत होगी, रूम के सबसे महलों पे तेरी हुकूमत होगी। सरकार दो जहां ने कहा इतनी दौलत अल्लाह तुझको देगा कि ज़कात लेके दरवाजे पे खड़ा रहेगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं हुजूर की तीनों बातें मेरी निगाहों के सामने सच साबित हुई। मैंने वो दिन भी देखा, इस कदर अमन कायम हो गया, ये सारे कुफार और मुशरिकीन धाराशायी हो गए, हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई। एक औरत अकेली चल के आई इराक से, तवाफ़े काबा करी और लौट के चली गई। सिवाय दरिंदों के और जानवर के किसी इंसान किसी लुटेरे का कोई खौफ उनको नहीं था। ये आंख से मैंने देखा, वो अमन कायम हुआ। पहले फांसी पे लटकाया जा रहा था, धुआं दिया जा रहा था, और हुजूर ने क्या कहा? सब्र करना, सब्र और जिहाद से काम लेना, मजबूती से ईमान की रस्सी को थामे रहना। वो दिन आने वाला है कि आज सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, पड़ोस की औरतों की आबरू खैर महफूज थी, ये सारी बदअमली का खात्मा होगा, ये मार धाड़ का माहौल खत्म होगा। अभी तू जाता है इस्तिंजा करने तो तुझको डर लगता है कि कोई काफी मेरी गर्दन काट ना दे, ये सब खत्म होगा। ऐसा अमन कायम होगा कि इराक से चल के तनहा ज़ेवरात से लैस होकर औरत आएगी, मगर कोई पूछने वाला ना होगा। अभी कहते हैं जब उमर फारूक के जमाने में रूम फतह हुआ, उनके जमाने में ईरान फतह हुआ, और रूम के सबसे महलों पे या उनके कुब्बतुल पैसा पे, उनके व्हाइट हाउसेस पे जब इस्लाम का कब्जा हुआ तो हमने उस पेशन गोई को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। मुस्तफा ने जो कहा था वो सच साबित हुआ, और पहले वो दिन भी मैंने देखा। इतनी दौलतें लोगों के पास हो गई कि लोग ज़कात के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, पैसा लेकर कोई लेने वाला नहीं है। अल्लाह का वादा सच साबित हुआ, जो कुछ मुस्तफा ने कहा था सच साबित हुआ था। इनाम किसका? सब्र का, इनाम तकवा का, इनाम खुदा तरसी का, इनाम मुत्तकी बनने का, इनाम मुसीबतों पे सब्र का, इनाम काफिरों की तलवार का इज्जत झेलने का, वो इनाम दुनिया का इनाम है। हुकूमत ही हुकूमत हुई। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुशरिकीन ने कहा अब से आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसके आगे जाने नहीं देंगे। लोगों ने प्लान बनाया मारने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को गालिब करने का प्लान बनाया कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है, अल्लाह मुसलमानों को गालिब करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर से निकल के मैदान में जिहाद करोगे तब अल्लाह आसमान से 12,000 फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा। अगर तू घर से नहीं निकलेगा तो फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, तुझे मैदान में निकलना होगा। तू एक कदम निकल, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेमाल करेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा
तेरा इस्तेमाल करेंगे। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने कहा मिटा देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ती चली गई, इधर से जिहाद चलता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद बढ़ता रहा, हौसला बुलंद होता रहा, सजदों में दुआएं होती रही। फिर क्या हुआ, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम की कश्ती को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल में हमने यही देखा है कि तो सच हमेशा गालिब रहा है, इस्लाम के मानने वाले हमेशा गालिब रहे हैं। जब 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका यूरोप के काफिरों ने बोला अब इसे मिटा के दम लेंगे। हिंदुस्तान के मुशरिक ने कहा इसे मिटा देंगे। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से साल भर पहले, आज से 100 साल पहले मुशरिकों ने कहा था अब इस्लाम की कश्ती को डुबा देंगे, इस्लाम की इमारत में को ढा देंगे, बढ़ते हुए कदम इसके रोक देंगे, अब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के सब्र का, इनकी दुआओं का वो इनाम दिया कि आज वो मिटाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब मिट चुके। उनकी हुकूमत पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, हिंदुस्तान पे 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। आधी दुनिया पे मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये अहमद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद अहसन है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद बिलाल है, ये मोहम्मद जैद है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है ए मोमिन, गम मत खाना, सुस्ती मत करना, कुदरत का निजाम है। अगर तूने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामा तो शिकस्त बज़ाहिर नजर आए, मगर फतह हमें हकीकत में तेरी ही तकदीर में है। 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला ये बता रहा है इस्लाम दुश्मनी जब जब बढ़ती गई है, मोहम्मदी गुलामों में इजाफा होता चला गया है। हरे नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदासन फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। भले ही आज वो नाच रहा है, आज वो गा रहा है, आज वो ढोल बजा रहा है, साहब जिसको फुर्सत नहीं पूजा करने की, जिसको फुर्सत नहीं हराम काम से बचने की, ये आए हैं मंदिरों के सामने नाचने कूदने। जो अपनी बेटियों को थाल देके भेजने वाला हो, अब घर में शराब पी के नाचने वाला हो, ये आज साफ सजा सवार करके नाच कूद रहे हैं। जान ले ये नाचने वाले वफादार नहीं है वो अपने मजहब के, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कि हमने किला फतह कर लिया, हमने मुल्क फतह कर लिया। क्या मुल्क फतह कर लिया? तुमने जज को रिश्वत देकर गलत फैसला करवा के और अभी खुशी के दीप जला रहे हो। और याद रखना तुमने गलत फैसला करवाया है, हम गलत फैसला नहीं करवाएंगे। सच हमेशा गालिब होता है, वो दिन करीब आने वाला है जब तू दज्जाल की पनाह लेगा और हम जनाबे ईसा की पनाह लेंगे। और जनाबे ईसा के दौर में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। तो मस्जिदें जुल्म करके नहीं, ऑटोमेटिक खुदाई कानून के तहत वहां मस्जिदें बन जाएगी जहां मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। If you will help the religion of Allah, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा काफिरों की तरह रहे, फतह हम पे नासिल हो जाएगी, मेरा सर का बाल काफिरों की तरह रहे और आसमान से फतह नासिल हो जाएगी, मेरे हाथ में धागा कड़ा और फटा हुआ पैंट काफिरों की तरह रहे और फतह नासिल हो जाएगी। मेरे घर में 10-10 घंटे तक गाने बजें और वहां मौसीकी बजे, पियानो बजे और कॉमेडी हो और हाफ चड्डी पहन के घर में मियाँ बीवी के साथ और बच्चों के साथ नाचे कूदें, इंजॉय करें और अल्लाह की रहमत नासिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं और अल्लाह मदद मुझ पर नासिल फरमा दे। अगर अल्लाह मदद नासिल फरमा देगा और मेरा सर से लेके पांव तक सारा हुलिया काफिरों जैसा रहेगा तो मेरी शरारत तो और बढ़ जाएगी, मेरा ज़िना तो और बढ़ जाएगा, मेरी शराब नोशी तो और बढ़ जाएगी। चाहे हम जैसी भी अल्लाह मदद नासिल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये भी तुम मत
समझना कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा और इस तरह से इस्लाम की सच्चाई खत्म हो जाएगी। चिल्लाने से, बोलने से और तकरीर से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो कहानी। आज से 800 साल पहले बगदाद जो इस्लाम की राजधानी का शरफ जिसको हासिल था, वहां जब लोगों ने सत्ता की खातिर वो सब काम करना शुरू किया जो काम एक मुशरिक करता है, यानी नमाजों सजदों में दिल बहलाने के जरिए वह लोग सत्ता की खातिर आपस में दुश्मनी शुरू कर दी, आपस में इख्तलाफ शुरू किया, आपस में जंग शुरू कर दी। सजदा गायब है, अब कुर्सी का शौक बढ़ गया। वो शराब जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो शराब नोशी उसके घरों में होने लगी। वो ज़िना जिसको इस्लाम ने मिटाया था, वो ज़िनाकारी 300 लौंडियां घरों में नाचने लगी। एक मजलूम बुजुर्ग थे जो बगदाद की गलियों में घूम घूम कर कहते थे, ए आराम करने वाले, ए ऐश करने वाले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, यहाँ के नदी नाले सब खून से भर जाएंगे, तेरी लाशें सड़ जाएंगी, कोई तुझको दफनाने वाला ना होगा। वक्त है अभी तौबा कर ले, तेरी बदअमली अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रही है। उस मजलूम को लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा उसे पकने दो, इससे क्या होता है, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने मजलूम का मजाक उड़ाया। मजलूम ने अपनी बात को नहीं बंद की, उन्होंने फिर गली में घूम घूम कर कहा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घर से शराब निकाल दे, ज़िनाकारी से तौबा कर ले, वरना मैं देख रहा हूँ दुश्मन हमला करने वाला है, तेरे बच्चे कत्ल होने वाले हैं, तुम्हारे घर में तेरी लाशें सड़ने वाली है, बगदाद की गलियों में खून की नदी बहने वाली है। लोगों ने कहा ये हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, कैसे ऐसा हो जाएगा, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मुसलमानों की करोड़ों की आबादी, बगदाद में हर तरफ चहल पहल, ये कैसे होगा कि खून की नदी बह जाएगी, इसे मारो, इसे मजलूम को, ये क्यों हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है। आज तुम्हें लग रहा है ना मौलाना खिताब बंद कर दें, जुमा के दिन 20 मिनट की जगह 30 मिनट खिताब हुआ तो तुम कहता है इस मौलाना को हटा दो, ये खिताब 10 मिनट करना चाहिए, ये 30 मिनट कर दिया, ये खिलाफ लंबी कर दिया, आप ना आते ना कल को क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये वही बोलते हैं जो जुमा की नमाज के बाद बाहर दालान में गीबत की महफिल सजा के बैठे हैं, बाहर चौक पे खड़े हुए साहब की दरबार की लंतरानी हाँक रहे हैं, मगर मस्जिद में मन नहीं लगता। उसे डराया जाए तो कहता ये मौलवी साहब को हटाओ यहाँ से, चुपचाप नमाज शॉर्ट में पढ़ाओ, तकरीर और भाषण बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है। ये भी वही फिरौनियत है जो आज भी शरीरों को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। उन खबीसों मर्दूदों को चाहिए था वह तौबा करता, नेक बनता, मस्जिदों का मजाक, जलसे का मजाक, उन खबीसों मर्दूदों को वह कहता रहा, ए खबीस तौबा कर, अल्लाह से अज़ाब आने वाला है, खून में तेरी गलियां बहने वाला, तेरी गलियों में खून बहने वाला है। लोगों ने इतना मारा उस मजलूम को, कहा खबरदार मेरी गली में नजर नहीं आना, तुम हमारे ऐश का मजाक किरकिरा कर रहे हो, हमारी जिंदगी को तुमने तब्द कर दिया है, अपना भाषण बंद कर। लोगों ने बच्चों के जरिए पहले पत्थर फेंकवाया, उससे भी नहीं रहा गया, उसने अपनी बात बंद नहीं की। लोगों ने इतना मारा कि मजलूम बुजुर्ग इंतकाल हो गए। उधर इंतकाल होना था, इधर रातों रात चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया, इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने जब्त कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहाँ से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहाँ तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया, हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहा उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है,
उस बगदाद में जहां मारूफ की जैसे मुस्तनाबुत्ताबाद हुजूर की कब्र मौजूद है, जहां हजरत बायजीद हजरत जुनैद बगदादी हजरत श्री सख्ती के मज़ारात मौजूद है, जहां हजरत बहलूल नाना का मज़ार मौजूद है। इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया। इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में एक बुजुर्ग निकले तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं।